Good morning, students. This is Professor Kavita Kamerikar from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. Today we will discuss the next topic of unit number 4, that is pulse and square wave generator. This is the lecture plan 29 of the subject EMI. So let's start with the topic pulse generator. Pulse generator is an electronic test equipment that is used to generate rectangular pulses. These are used basically for working with digital circuits. They are also used with an oscilloscope as the measuring device. Pulse generator can also be used to display the waveform either at the output or at some specific points in the system under test. पल्स जनरेटर को यूज़ करके हम जो वेवफॉर्म है उसे हम चेक कर सकते हैं कि उसका किस तरीके का शेप हमें मिल रहा है. दे प्रोवाइड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम अंडर टेस्ट. So, what is the basic difference between the pulse and square wave generator? The square wave generator and pulse generator are generally used as measuring device in combination with the oscilloscope. But the basic difference between the square wave generator and pulse wave generator is in the duty cycle. क्या होता है duty cycle? Duty cycle is defined as the ratio of average value of a pulse over one cycle to the peak value. तो फॉर्मूला क्या हुआ ड्यूटी साइकिल का? एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय द पीक वैल्यू. अगर हम इसको एक दूसरे फॉर्मूले से डिफाइन करना चाहें, सो देयर इज एनी अनदर डेफिनेशन, दैट इज ड्यूटी साइकिल इक्वल्स टू पल्स विड्थ डिवाइडेड बाय पल्स पीरियड. सो बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूला वी कैन डिफाइन ड्यूटी साइकिल. सो इन द स्क्वायर वेव जनरेटर, इफ वी कंसिडर अ स्क्वायर वेव वोल्टेज एज शोन इन फिगर, द एवरेज वैल्यू इज हाफ ऑफ द पीक वैल्यू. जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, एवरेज वैल्यू क्या है? दिस इज द एवरेज वैल्यू. एंड व्हाट इज द पीक वैल्यू? दिस इज द पीक वैल्यू. सो इन द स्क्वायर वेव जनरेटर, द स्क्वायर वेव फॉर्म ऑलवेज शो एवरेज वैल्यू एज अ हाफ ऑफ पीक वैल्यू. सो व्हाट विल बी द ड्यूटी साइकिल? ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वैल्यू अपॉन पीक वैल्यू. So by putting the value of average value and peak value, if we are taking the peak value as t, then the average value will be t by 2. So the duty cycle will become 0.5. So in case of square waveform, the duty cycle is always 0.5. So square wave generator produces an output voltage with equal on and off period as duty cycle is 0.5 or 50%. तो जब भी हम स्क्वायर वेव जनरेटर की बात करेंगे तो ड्यूटी साइकिल कितनी होगी वहाँ पर? ऑलवेज 50%. सो इट इज़ फिक्स्ड वैल्यू हियर बिकॉज ऑन एंड ऑफ पीरियड आर इक्वल टू ईच अदर. जितनी देर के लिए ऑन पीरियड होगा, दिस इज़ द ऑन पीरियड एंड दिस इज़ द ऑफ पीरियड. दीज टू पीरियड्स आर सेम. सो इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर वेव generator. So it can be stated that irrespective of the frequency of operation, the positive and negative half cycle extend over half of the total period in the square wave generator. So this is the basic difference between the pulse and square wave generator. अब अगर हम पल्स जनरेटर की बात करें तो वहाँ पर अगर पल्स वेवफॉर्म हम लेके चल रहे हैं तो पल्स के केस में क्या होगा? बेसिकली पल्स जनरेटर क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड अ रेक्टेंगुलर पल्स, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा हुआ है. What is the basic concept of pulse generator? It provide rectangular pulse. So it is a shape of rectangular pulse. It is a rectangular pulse जहाँ पर pulse की width कितनी है? This is the pulse width small t and this is the period of the pulse, starting of the first period to the starting of the next pulse period. तो यहाँ पर what is the small t? Small t is the pulse width. एंड व्हाट इज़ द पल्स पीरियड? इट इज़ द कैपिटल टी. पल्स पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे हम? जहाँ से पल्स स्टार्ट हो रही है, जहाँ से पहली पल्स स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट से लेके जहाँ से दूसरी पल्स स्टार्ट हो रही है. सो द ड्यूरेशन बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव पल्स इज कॉल्ड एज पल्स पीरियड. तो यहाँ पर हम ड्यूटी साइकिल को डिफाइन करेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर? पल्स विड्थ अपॉन पल्स पीरियड. तो पल्स विड्थ हो गई स्मॉल टी और पल्स पीरियड हो गया कैपिटल टी. So it is the formula for duty cycle of pulse waveform.
तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल टी इज़ द टोटल पल्स पीरियड. सो इट कैन बी कॉल्ड एज द, अगर ये ऑन पीरियड है और ये ऑफ पीरियड है तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ऑन प्लस ऑफ. कितनी देर के लिए ऑन था और कितनी देर के लिए ऑफ रहा है. सो ड्यूटी साइकिल कैन बी डिफाइंड एज टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ. स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी इज़ द ऑन टाइम जो कि पल्स की विड्थ है, और कैपिटल टी क्या है, पल्स पीरियड. दिस इज द टोटल टाइम पीरियड एंड इट इज इक्वल्स टू द ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ड्यूटी साइकिल फॉर अ पल्स वेव फॉर्म? इट इज टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ. Thus, depending upon the on period of the pulse, duty cycle of a pulse may vary between 50% to 95%. तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया ये कि जो स्क्वायर वेव जनरेटर होगा वो कैसे ड्यूटी साइकिल मिलेगी, वहाँ से जो पल्स मिलेगी उसकी ड्यूटी साइकिल क्या होगी, हमेशा 50% होगी. लेकिन पल्स जनरेटर से जो हमें मिलेगा वेव फॉर्म, उसकी ड्यूटी साइकिल क्या होगी, इट इज़ बिटवीन 50% टू 95%, यानी कि ये वेरी होगा. So it is the basic difference between the square waveform and the pulse waveform. Now the pulse and square wave generator simple block diagram. In both the cases, the basic generating loop consists of a current source, ramp capacitor, Schmitt trigger and the current switching circuit. जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर दो करंट सोर्स लगे हुए हैं, एक Schmitt ट्रिगर लगा हुआ है और एक स्विचिंग सर्किट लगा हुआ है. दिस इज अ स्विचिंग सर्किट. ये स्विच करेगा इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा. सो इट इज़ द बेसिक जनरेटिंग लूप दैट इज़ यूज्ड इन पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेटर. अब यहाँ पर किस तरीके से इसका फंक्शन होगा वो हमें डिस्कस करना है. वी विल डिस्कस इट. द टू करंट सोर्स प्रोवाइड अ कॉन्स्टेंट करंट टू अ रैम्प कैपेसिटर. ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इट इज़ कॉल्ड एज रैम्प. दिस इज कॉल्ड एज रैम्प कैपेसिटर. जिसको रैम्प इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो वोल्टेज होगा वो उसका जो शेप नहीं मिलेगा, दिस इज अ रैम्प शेप, सो दैट इट इज़ कॉल्ड एज रैम्प कैपेसिटर. तो जो करंट सोर्स है यहाँ पे लगे हुए, इनका काम क्या है, इट इज़ यूज टू डिस्चार्ज एंड चार्ज एंड डिस्चार्ज द कैपेसिटर. नाउ यहाँ पर जो करंट हमें मिल रहा है, अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स, दो करंट सोर्स लगे हुए हैं. सो अपर करंट सोर्स प्रोवाइड द करंट I1 एंड द लोअर करंट सोर्स प्रोवाइड द करंट I2 एंड द डायरेक्शन ऑफ बोथ द करंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर. तो इनिशियली क्या होगा, सपोज अपर करंट सोर्स इज एक्टिव, तो इस केस में कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पर I1 फ्लो होगा. एंड ड्यू टू दिस करंट फ्लो, इस समय ये स्विचिंग कहाँ यूज़ हो रही है, इट इज़ कनेक्टेड विद द कांस्टेंट करंट सोर्स. तो यहाँ पर ये क्या काम होगा, यहाँ पे द अपर करंट सोर्स विल चार्ज द कैपेसिटर एट अ कांस्टेंट रेट. ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा. जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, जब यहाँ पर I1 स्टार्ट होगा फ्लो होना, एट दिस टाइम जो ये वाली वेव फॉर्म है, दिस इज़ द कैपेसिटर वोल्टेज वेव फॉर्म. तो जैसे ही यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ अपर करंट सोर्स, द वोल्टेज विल इंक्रीज लीनियरली. अब इसके बाद व्हेन द वोल्टेज रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू, या हम ये कह सकते हैं व्हेन द पॉजिटिव रैम्प, दो टाइप का रैम्प होता है, एक होता है पॉजिटिव रैम्प यानी इंक्रीजिंग वैल्यू, और एक होता है नेगेटिव रैम्प. तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो हमें कैसा मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव रैम्प. व्हेन द पॉजिटिव रैम्प रीचेज द मैक्सिमम अपर लिमिट सेट बाय द सर्किट कंपोनेंट, द श्मिट ट्रिगर चेंजेस इट्स स्टेट. जैसे ही इसका जो वोल्टेज होगा वो स्मॉल ई पे पहुँचेगा जो कि प्री डिटरमाइंड लेवल है, इन दैट केस द श्मिट ट्रिगर विल चेंज द स्टेट. जो पहले अपर करंट सोर्स से कनेक्शन था वो अब कहाँ पे हो जाएगा, लोअर करंट सोर्स से कनेक्शन हो जाएगा. एंड इन दिस केस द करंट विल बी रिवर्स. अब करंट रिवर्स हो जाएगा. इज एट दिस टाइम द कैपेसिटर विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज. अब आप देख सकते हैं डायग्राम में, जैसे ही यहाँ पर ई पे आया उस केस में I1 हमारा कम हो गया, I1 लो लेवल पे आ गया और I2 एक्टिव हो गया.
तो जैसे ही यहाँ पे रिवर्स करंट आएगा, ये स्विच यहाँ कनेक्ट हो चुका है, तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव रैम्प। जब वोल्टेज डिक्रीज होगा लीनियरली, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव रैम्प, एंड दिस वाज अ पॉजिटिव रैम्प। तो ये डिस्चार्जिंग कहाँ तक होगी, अप टू अ सर्टेन वैल्यू। जब तक कि वो ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं आ जाता, वोल्टेज कम होते होते डिस्चार्जिंग विल बी कंटिन्यू। और जैसे ही वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा, अगेन श्मिट ट्रिगर विल चेंज इट्स स्टेट। जो पहले यहाँ कनेक्शन था वापस से कहाँ हो जाएगा, अगेन इट इज़ कनेक्टेड टू द अपर करंट सोर्स। अब जैसे ही अपर करंट सोर्स से कनेक्ट होगा, वापस से चार्ज होगा और वापस से वोल्टेज स्टार्ट हो जाएगा बढ़ना। सो दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और इस प्रोसेस के कारण हमें कैसा वोल्टेज मिलेगा, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी लाइक दिस, increasing then decreasing then increasing then decreasing. So it is called as ramp type waveform or the ramp voltage. So it is the basic concept of generating loop, जहाँ पर हमने दो करंट सोर्स यूज़ किए हुए हैं और दोनों करंट सोर्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोवाइड करेंगे। जब स्टार्ट में हम अपर करंट सोर्स को कनेक्शन दे रहे हैं कैपेसिटर के साथ, तो कैपेसिटर चार्ज होगा, उस समय वोल्टेज इंक्रीज होगा, I1 विल बी एक्टिव। और जैसे ही वोल्टेज एक प्री डिटरमाइंड लेवल पे पहुंचेगा, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज पे पहुंचेगा, उसके बाद श्मिट ट्रिगर स्टेट को चेंज करेगा और कैपेसिटर किससे कनेक्ट हो जाएगा, लोअर करंट सोर्स से। और लोअर करंट सोर्स कैसा करंट दे रहा है, रिवर्स करंट। सो ड्यू टू दिस रिवर्स करंट द कैपेसिटर विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज। और डिस्चार्जिंग कहाँ तक होगी, अप टू अ सर्टेन लेवल, और वी कैन से दैट एट द ओरिजिनल पॉइंट। तो जब ओरिजिनल वैल्यू पे वोल्टेज आ जाएगा, उसके बाद वापस से श्मिट ट्रिगर स्टेट को चेंज कर देगा। सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर श्मिट ट्रिगर चेंज कर रहा है स्टेट को, और अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो द वोल्टेज लेवल और द रैम्प वोल्टेज विल बी कंट्रोल्ड बाय द अपर करंट सोर्स एंड द लोअर करंट सोर्स। So it is the basic concept of generating loop. यही जो अभी आपने डिस्कस किया, it is also discussed here in this slide. The upper current source supplies a constant current to the capacitor and the capacitor voltage increase linearly. When the positive slope of the ramp voltage reaches the upper limit set by the internal circuit components, the Schmitt trigger changes the state. The trigger circuit output becomes negative and reverse the condition of the current switch. जो श्मिट ट्रिगर लगा रहेगा वो चेंज कर देगा उसके स्टेट को। नाउ द कैपेसिटर डिस्चार्जेस लीनियरली कंट्रोल्ड बाय द लोअर करंट सोर्स। व्हेन द नेगेटिव रैम्प रीचेस अ प्रीडिटरमाइंड लोअर लेवल, द श्मिट ट्रिगर स्विचेस बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड द एंटायर प्रोसेस इज रिपीटेड। अभी जो रेशियो मिलता है हमें I1 I2 का, ये क्या होता है, दिस इज द ड्यूटी साइकिल। The ratio I1 upon I2 determines the duty cycle and is controlled by the symmetric control. जो नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम है, जो कि इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम कह सकते हैं, इसमें एक सिमेट्रिक कंट्रोल होगा। सो द रेशियो I1 upon I2 determines the duty cycle and it is controlled by the symmetric control. सिमेट्रिक कंट्रोल का काम क्या रहेगा, I1 और I2 को जो रेशियो है उसको कंट्रोल करना। द सम ऑफ I1 and I2 determines the frequency and the size of the capacitor is selected by the multiplier switch. यहाँ पे जो तीन यहाँ पर ब्लॉक बने हुए, एक सिमेट्रिक ब्लॉक बना हुआ है, दिस इज अ सिमेट्रिक ब्लॉक, एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और एक मल्टीप्लायर। तो यहाँ इसमें सिमेट्रिक का काम क्या रहेगा, रेशियो को कंट्रोल करना, करंट रेशियो को। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल विल कंट्रोल द सम ऑफ द टू करंट्स I1 and I2, and similarly the size of the ramp capacitor is selected by the multiplier switch. जो मल्टीप्लायर स्विच लगा है उसका काम क्या रहेगा, टू सेलेक्ट द साइज ऑफ रैम्प कैपेसिटर, जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम एंड दैट वी हैव डिस्कस अर्लियर, दैट वाज अ बेसिक जेनेटिक लूप। उसमें एक पोर्शन हमने इसका लिया हुआ है। सो द यूनिट इज पावर्ड बाय एन इंटरनल सप्लाई दैट प्रोवाइड्स रेगुलेटेड वोल्टेज फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे एक इंटरनल सप्लाई देना रहेगी जो कि पूरी स्टेज को पावर देगा। सो इट इज़ द
कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेटर, जिसमें कि हम इस वाले पोर्शन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द पोर्शन दैट यू डिस्कस अर्लियर विद द श्मिट ट्रिगर. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज द बेसिक जनरेटिंग लूप. दिस इज द बेसिक जनरेटिंग लूप. और इसके बाद हमें वोल्टेज क्या मिलेगा कैपेसिटर से? वी विल गेट द रैंप वोल्टेज. एंड द श्मिट ट्रिगर जो है यहाँ पर, इसका आउटपुट कहाँ जा रहा है? द आउटपुट ऑफ श्मिट ट्रिगर इज पास टू द ट्रिगर आउटपुट सर्किट. अब आप देखो, यहाँ तक का तो हमने डिस्कस कर लिया है. उसके बाद फिर सिमेट्री को देख लिया, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल देख लिया, मल्टीप्लायर भी देख लिया. सिंक सर्किट का काम क्या रहेगा? टू सिंक्रोनाइज द श्मिट ट्रिगर विद द लेवल ऑफ वोल्टेज. अब श्मिट ट्रिगर का जो आउटपुट है वो कहाँ जा रहा है? इट इज़ कनेक्टेड विद द ट्रिगर आउटपुट एंड टू आउटपुट एम्पलीफायर्स. सो द ट्रिगर आउटपुट सर्किट क्या काम करेगा? ट्रिगर आउटपुट सर्किट डिफ्रेंशिएट्स स्क्वायर वेव आउटपुट, इन्वर्ट्स रिजल्टिंग पल्स एंड प्रोवाइड्स पॉजिटिव ट्रिगर पल्स. तो यहाँ से हमें ट्रिगर आउटपुट मिलेगा. उसके बाद यहाँ पर श्मिट ट्रिगर का आउटपुट दो जगह और जा रहा है. एट द अपर आउटपुट एम्पलीफायर, जहाँ से कि हमें 600 ओम आउटपुट मिल रहा है, 600 ओम आउटपुट एम्पलीफायर, एंड द अनदर इज 50 ओम आउटपुट एम्पलीफायर. सो देर आर 2 एम्पलीफायर्स विच इज कनेक्टेड विद द श्मिट ट्रिगर आउटपुट. तो यहाँ से हमें 600 ओम आउटपुट मिलेगा, यहाँ से हमें 50 ओम आउटपुट मिलेगा. देर इज़ अनदर कंट्रोल कॉल्ड एज वर्नियर दैट इज़ यूज टू एडजस्ट द फ्रिक्वेंसी. तो यहाँ पर ये हो गया बेसिक जनरेटिंग लूप. जनरेटिंग लूप के बाद जो भी वोल्टेज यहाँ मिलेगा, जो भी स्टेट रहेगी श्मिट ट्रिगर की, वो स्टेट आगे पास होगी और उस स्टेट को हम एम्पलीफाई करेंगे यूजिंग एनी ऑफ द 2 आउटपुट एम्पलीफायर, 600 ओम और 50 ओम, एंड वी विल गेट द आउटपुट. नाउ द जनरेटर कैन बी सिंक्रोनाइज्ड टू एन एक्सटर्नल सिग्नल बाय ट्रिगरिंग द सर्किट बाय एन एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन पल्स. तो यहाँ पर एक सिंक इनपुट लगा हुआ है जिससे कि हम इस पूरे सर्किट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. नाउ द स्पेसिफिकेशन ऑफ पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेटर. फर्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी रेंज दैट वी कैन ऑपरेटिंग हियर is from 1 Hz to 10 MHz. The duty cycle can be varied from 25% to 75%. 2 independent outputs are available. First is 50 ohm source. यहाँ पर हमें 2 आउटपुट मिलेंगे. First is 50 ohm and the another is 600 ohm. So 50 ohm source that supplies pulses with the rise time and fall time of 5 nanosecond at 5 volt peak amplitude. और दूसरा है 600 ओम सोर्स विच सप्लाई पल्स विद द राइज एंड फॉल टाइम ऑफ 70 नैनोसेकेंड एट 30 वोल्ट पीक एम्पलीट्यूड. द जनरेटर कैन बी ऑपरेटेड एज फ्री रनिंग जनरेटर. इट कैन बी सिंक्रोनाइज विद एक्सटर्नल सिग्नल एंड टू सिंक्रोनाइज एक्सटर्नल सर्किट्स ट्रिगर आउटपुट पल्सेस आर अवेलेबल. सो दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेटर. Next is the requirements of a pulse generator. First requirement is that the pulse should have minimum distortion. Next is the pulse should have sufficient maximum amplitude. If appreciable amount output power is required by the test circuit. At the same time, the attenuation range should be adequate to produce small amplitude pulses to prevent overdriving of some test circuit. यानी कि यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड भी चाहिए मैक्सिमम जितना हमें मिलना चाहिए गेन के हिसाब से, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू एडजस्ट द एटेन्यूएशन ऑल्सो टू प्रिवेंट द ओवर ड्राइविंग ऑफ सर्किट. द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ द पल्स रिपीटेशन रेट दैट इज कॉल्ड एज PRR शुड मीट द एंड नीड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. Next requirement is the output impedance of the pulse generator is another important parameter. In a fast pulse system, the generator should be matched to the cable and the cable to the test circuit. Any mismatch would cause energy to be reflected back to the generator by the test circuit. So this cause distortion of the pulses. The last requirement is that to maintain the DC bias level, DC coupling of the output circuit is needed. So these are the basic requirements of a pulse generator. As we can see from the diagram, there are different control circuits here.
like symmetry, frequency control, or it can be called as frequency dial, then vernier, then multiplier. So there are different controls. These are provided at the front panel of the instrument, and we can use different knobs to control the instrument to provide the proper control. So it is very important controls here. So these all about the function of pulse and square wave generator. We have discussed the basic concept of pulse and square waveform, basic concept of generating loop, and the block diagram of pulse and square wave generator. Thank you.